ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. Welcome to Samveda e-learning class. Class 10th standard, subject Social Science. Presentation by Farida Begum, Assistant Teacher, Phulban Urdu Girls High School, Hospet, managed by Khidmatul Muslimin, District Ballari, State Karnataka. बच्चों, कल की क्लास में हमने जमाते दहम का ज्योग्राफी हिस्से से सबक पढ़ा था. उम्मीद है आप वो मश्क करके अच्छी तरह से जहन में रखा होगा. अब क्लास शुरू होने से पहले आप एक नोटबुक और पेन लीजिए और अहम नुकात को लिखने की कोशिश कीजिए और बाद में मश्क कीजिए. चलिए बच्चों, कल हम क्या पढ़ा था वो एक मर्तबा याद कर लें और फिर आज की क्लास देखें. कल हमने जमाते दहम का समाजी साइंस हिस्से से ज्योग्राफी हिस्सा सबक नंबर 8 पढ़े थे. इंडियन मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस पार्ट 2 आज पढ़ेंगे. कल हम हिस्सा अव्वल पढ़ चुके थे. चलिए हिंदुस्तान के मादनियात के तवानी वसाइल का हिस्सा दुआम आप पढ़ लें. आइए चंद सवालात करती हूँ, इसके जवाबात दीजिए. मादनियात से क्या मुराद है? याद कीजिए बच्चों और जवाब दीजिए इसका. सही जवाब, मादनियात एक कुदरती नामियाती मादा है जिसमें कीमियाई मुरक्कबात और तबई खुसूसियात मौजूद रहती हैं. मिसाल के तौर पर खाम लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट वगैरह. मादनियात की अहमियत बयान करो. मादनियात कुदरत का बेशकीमती तोहफ़ा है. ये बहुत कीमती कुदरती वसीला है. मुल्क की खुशहाली में इनकी बड़ी देन है. ये सनती तरक्की, तामीराती, नक्लो हमल, मौसिला, तिजारत और व्यापार के लिए बहुत कारआमद है. चंद मादनियात को तिजारती तौर पर काफ़ी अहमियत हासिल है. चलिए बच्चों, अब ये सवाल का जवाब दीजिए. मैग्नीज पर नोट लिखो. शाबाश. मैग्नीज सबसे अहम आहनी आमेजिश धात है. हिंदुस्तान मैग्नीज की पैदावार में 5वां बड़ा मुल्क है. हिंदुस्तान जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, बेल्जियम मुल्कों को मैग्नीज बरामद करता है. ये चीज़ लेने के बाद ये ममालिक वहाँ पर सनतों में और दीगर ज़रूरियात के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. महाराष्ट्र के सुंदरगढ़, रत्नागिरी, मध्य प्रदेश में मैग्नीज बहुत ज़्यादा पाया जाता है. ये अहम इलाके हैं. कर्नाटक में शुमाली केनरा, बल्लारी, चित्रदुर्गा, तुमकुर ज़िले में मैग्नीज की पैदावार बहुत मशहूर है. अबरख के इस्तेमालात बयान करो. यादा से जवाब दो बच्चों. शाबाश, बहुत सही जवाब दिया आपने. इसे फोड़कर पतला वर्ख नुमा बना दिया जाता है.
یہ شفاف اور تپش مدافعت پسند ہوتی ہے۔ ابرق کو ٹیلی فون، ٹیلی گراف، وائرلیس سروس، شیشہ، رنگدار وارنش، ڈائنامو، ہوائی جہاز، موٹر گاڑیوں کی صنعت میں اور کیمیائی اشیاء بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے آج کے اس دوسرے حصے میں ہم توانائی کے وسائل اور اس کی اہمیت، روایتی توانائی کے وسائل اور روایتی توانائی کے وسائل کی اہمیت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ توانائی کے وسائل اور اس کی اہمیت۔ وہ ذرائع جو توانائی کی پیداوار کو لازمی ہوتے ہیں ان کو توانائی کے وسائل کہتے ہیں۔ ملک میں معاشی ترقی اور لوگوں کے معیار زندگی کو بدلنے کے لیے توانائی کا وسیلہ بہت ضروری ہے۔ ملک کے لیے بھی ضروری ہے اور ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں بہت ضروری ہے، ورنہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ہر چیز میں توانائی کا ہم استعمال کرتے ہیں، توانائی کے ذرائعوں کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ صنعتی ترقی کے لیے معاون و مددگار ہوتی ہے۔ صنعتی ترقی اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ زراعت و تجارت، نقل و حمل اور پیغام رسائی وغیرہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زراعت کے میدان میں بھی یہ بہت اہم ہے، نقل و حمل کے میدان میں بھی یہ بہت اہم کردار نبھاتے ہیں، اور تجارت، بیرونی تجارت کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ ملک کی معاشی ترقی میں توانائی کے وسائل کا کردار بے حد نمایاں ہے۔ توانائی کے وسائل کی قسمیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ توانائی کے وسائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے روایتی توانائی کے وسائل، دوسرا ہے غیر روایتی توانائی کے وسائل۔ روایتی توانائی کے وسائل کسے کہتے ہیں؟ وہ وسائل جو استعمال کرنے پر ختم ہو جاتے ہیں ان کو روایتی توانائی کے وسائل کہتے ہیں۔ یعنی استعمال کرتے کرتے یہ وسیلہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ کوئلہ، پیٹرولیم، قدرتی گیس وغیرہ، یہ ختم ہونے والے ذرائع ہیں۔ غیر روایتی توانائی کے وسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، وہ وسائل جو استعمال کرنے پر ختم نہیں ہوتے ان کو غیر روایتی توانائی کے وسائل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شمسی توانائی، مد و جزری توانائی، ہوا سے حاصل ہونے والی توانائی، تھرمل توانائی وغیرہ۔ دیکھیں، روایتی توانائی کا وسیلہ جیسے کہ کوئلہ ہے، پیٹرولیم ہے، قدرتی گیس ہے، اور غیر روایتی توانائی کے وسائل جیسے کہ شمسی توانائی، فضائی یعنی ہوائی توانائی، بادی توانائی بھی اسے کہا جاتا ہے، ونڈ انرجی اسے کہتے ہیں۔ غیر روایتی توانائی کا وسیلہ ایک مد و جزری توانائی بھی ہے اور تھرمل انرجی بھی ہے۔ روایتی توانائی کے وسائل کی اہمیت کیا ہے دیکھیں گے۔ چلیے، یہ ختم ہونے والے وسائل ہیں، استعمال کرنے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے عالمی حدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے زیادہ استعمال سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ ماحول میں جو توازن برقرار ہے، ماحول میں گرمی زیادہ آ جاتی ہے، ماحول گندا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ آگے آنے والی نسل کے لیے ان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم جتنا استعمال کر رہے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کریں، غیر ضروری طور پر اسے ویسٹ نہ کریں۔ اس کے استعمال سے سبز گھر کا کلیے میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئلہ۔ کوئلہ درختوں کے اصل جزء کا ایندھن ہے۔ یہ کثیر کاربن سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ کوئلے کو کالا سونا یا کالا ہیرا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ استعمال کے لحاظ سے بہت مفید ہے۔
कई हज़ार साल पहले जंगलात ज़मीन में दफन होने से दर्जे हरारत और दबाव के सबब कोयले की शक्ल में तब्दील हो गया। ज़मीन के अंदर जंगलात धंस गए थे, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में ज़्यादा होने की वजह से, ज़मीन का दबाव ज़्यादा होने की वजह से ये जंगलात कोयले की शक्ल में बदल गए। हिंदुस्तान के कोयले के ज़खायर क़दीम दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। गुंडवाना दौर से इसके अर्जियात मिले हैं। देखिए कोयला है और एक कोयले की कानकनी किस तरह से की जा रही है। हिंदुस्तान में कोयले की अहमियत। हिंदुस्तान में कोयला तवानाई का अहम ज़रिया है। मुल्क में खर्च होने वाली कुल तवानाई का 67% हिस्सा कोयला से हिंदुस्तान में दस्तयाब होता है। इससे दीगर कई अशिया बनाई जाती हैं, अमोनिया, कोयला, गैस, सल्फर वगैरह। सनतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े होटल्स में इसे पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आयरन एंड स्टील कंपनी में लोहे को पिघलाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन को चलाने में भी इसे, पहले क़दीम ट्रेनों में, पुराने किस्म की जो ट्रेन थी उसमें ये चलाने के लिए कोयला ही इस्तेमाल किया जाता था। अब तो जदीद किस्म के ट्रेन हैं, मेट्रो ट्रेन है, डीजल से चलने वाली इंजन आ चुकी हैं, तो इसका इस्तेमाल थोड़ा कम हुआ है, मगर सनतों में और दीगर ज़रूरतों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। कोयले के इस्तेमालात। कोयले को कीमियाई सनतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। धमाकों के मादे की तैयारी में इसे इस्तेमाल करते हैं। मसनवी रेशा बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मसनवी रबर बनाने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की तैयारी में इसे इस्तेमाल किया जाता है। कीमियाई खाद की तैयारी वगैरह में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर सनतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आपको मालूम है तार कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम? हाँ, सड़क बनाने के लिए, पक्की सड़क बनाने के लिए तार का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कोयले से बना हुआ होता है। सल्फर बनाते हैं और इसके ज़रिए कोयले के ज़रिए एनर्जी भी तवानाई का एक कुदरती ज़रिया है। इसके ज़रिए तवानाई भी हासिल करते हैं। मसनवी रबर बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखें अब हिंदुस्तान में कोयले की पैदावार की तकसीम किस तरह से है। हिंदुस्तान कोयले की पैदावार में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मगरबी बंगाल रियासतों में बड़े पैमाने पर कोयले के ज़खायर दस्तयाब हैं। देखिए बच्चों, अब तक जितनी भी हम वादियाती वसीला पढ़ रहे हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, ये रियासतें आ रही हैं, बार बार आ रही है। इसमें हर वसीला पाया जा रहा है। देखिए इन रियासतों में मुल्क की 96% कोयले के ज़खायर पाई जा रही हैं। कोयले के ज़खायर आसाम, मेघालय और नागालैंड में भी पाए जाते हैं। आइए बच्चों एक सरगर्मी कर लें। तवानाई के वसाइल किसे कहते हैं और इसकी अहमियत क्या है? वो ज़राए जो तवानाई की पैदावार के लिए लाजमी होते हैं, इनको तवानाई के वसाइल कहते हैं। मुल्क में माशी तरक्की और लोगों के मियारी ज़िंदगी को बदलने के लिए तवानाई का वसीला होना बहुत ज़रूरी है। ये सनती तरक्की के लिए माउन व मददगार है। ज़राअत व तिजारत, नक़्ल व हमल, पैगाम रसाई वगैरह के लिए अहम किरदार अदा करता है। मुल्क की माशी तरक्की में तवानाई के वसाइल का अहम किरदार है। चलिए बच्चों और एक सवाल का जवाब दीजिए। तवानाई के वसाइल के अक़साम कौन से हैं? शाबाश।
अच्छी तरह याद किया आपने। तवानाई के वसाइल के दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है रिवायती तवानाई का वसीला, दूसरा है गैर रिवायती तवानाई का वसीला। रिवायती तवानाई के वसाइल जो इस्तेमाल करने पर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस वगैरह। गैर रिवायती तवानाई के वसाइल वो वसाइल जो ख़त्म होने पर, जो इस्तेमाल करने पर ख़त्म नहीं होते। शमसी तवानाई, हवा की तवानाई, मद्दोजज़री तवानाई, थर्मल तवानाई। पेट्रोलियम, चलिए आप पेट्रोलियम के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर लें। इसकी तक़सीम और इसके इस्तेमालात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से तश्कील शुदा मादनी तेल है। पेट्रोलियम लातीनी लफ्ज़ पेट्रा से माखूज़ है, जिसके माने चट्टानी तेल के हैं। पेट्रोलियम को इसके माशी इस्तेमाल के सबब सियाल सोना कहा जाता है। सियाल का मतलब माया सोना भी कहते हैं। कीमती ज़रिया है ये, और नक़्ल व हमल के ज़राइयों में होना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोलियम के इस्तेमालात देखें, ये ईंधन के साथ साथ कई सनतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये तिजारती तवानाई का अहम ज़रिया है। ये ज़्यादातर नक़्ल व हमल के मैदान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम से मसनवी रबर, मसनवी रेशे, दवाइयाँ और रंग साजी में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दवाइयाँ बनाने के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी तक़सीम देखें, हिंदुस्तान में ज़्यादातर पेट्रोलियम के ज़खायर महाराष्ट्र के मुंबई हाई, गुजरात, आसाम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान मुंबई हाई का इलाक़ा मुंबई के क़रीब बहरे अरब में, यहाँ पर बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा है यहाँ पे पेट्रोलियम का। मुंबई हाई हिंदुस्तान में सबसे वसी और सबसे ज़्यादा तेल निकालने का कारखाना है। देखिए, मुंबई हाई मुंबई से करीब में समंदर बहरे अरब के दरमियान में ये मुकाम मौजूद है, और पेट्रोलियम समुंदर के अंदर से ही हासिल होता है। हिंदुस्तान में पेट्रोलियम की तक़सीम। गुजरात हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा तेल का इलाक़ा है। आसाम हिंदुस्तान का तेल का सबसे बड़ा इलाक़ा है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम की दरियाफ्त आसाम के माकुम में हुई है। पहले यही तेल की पैदावार की सबसे बड़ी रियासत थी, अब तीसरे नंबर पर है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल है, इसलिए इसे ज़्यादा निकाला गया था और यहाँ के ज़ख़ीरा ख़त्म होता जा रहा था, इसलिए ये तीसरे नंबर पे आया है, और पहले नंबर पे मुंबई हाई है। हिंदुस्तान में पेट्रोलियम के ज़खायर के दीगर इलाक़े गोदावरी और कृष्णा कावेरी के डेल्टाओं के किनारे भी मौजूद हैं। न्यूक्लियाई तवानाई। एटमी मादनियात से पैदा होने वाली तवानाई को न्यूक्लियाई तवानाई कहते हैं। अहम एटमी मादनियात यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिथियम हैं। हिंदुस्तान का सबसे पहला न्यूक्लियाई तवानाई का मरकज़ 1969 सन ईस्वी में महाराष्ट्र के तारापुर में क़ायम किया गया था। न्यूक्लियाई तवानाई की अहमियत। हिंदुस्तान एटमी ज़खायर से माला माल है। यूरेनियम, थोरियम न्यूक्लियाई तवानाई की पैदावार के लिए लाजमी है और हिंदुस्तान में मौजूद है। हिंदुस्तान में तवानाई की मांग से इजाफ़ा हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियाई तवानाई को इसको पूरा किया जा सकता है। हिंदुस्तान में न्यूक्लियाई तवानाई के स्टेशन कहाँ कहाँ पर मौजूद है, चलिए देखें। हिंदुस्तान में 7 बड़े तवानाई के मराकिज़ हैं। पहला है महाराष्ट्र के करीब मुंबई के तारापुर में, राजस्थान में कोटा के करीब राणा प्रताप सागर में, ये दूसरा न्यूक्लियाई स्टेशन है। तीसरा है तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कलपक्कम।
चौथा है उत्तर प्रदेश में नरोवरा, पांचवा है गुजरात में काकरपारा, छठा है तमिलनाडु में कुंदनकुलम, सातवां है कर्नाटक में कारवार के करीब कायगा। चलिए देखें अब ये तस्वीर महाराष्ट्र के करीब, मुंबई के करीब तारापुर में न्यूक्लियाई पावर स्टेशन, राजस्थान में कोटा के करीब राणा प्रताप सागर का तवानाई का मरकज़, तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कलपक्कम का तवानाई का मरकज़। ये देखिए न्यूक्लियाई तवानाई का मरकज़। अब उत्तर प्रदेश में नरोवरा का तवानाई का मरकज़ ये है। गुजरात में काकरपाड़ा ये तवानाई का मरकज़ है। तमिलनाडु में कुंदनकुलम न्यूक्लियाई तवानाई का मरकज़ है। कर्नाटक में कारवार के करीब कायगा। ये न्यूक्लियाई मरकज़ बनाने के लिए बहुत रुकावटें आई थीं, क्योंकि कारवार जो है ये मगरबी घाट में आने वाला इलाक़ा है। मगरबी घाट हिंदुस्तान में तफरीही मुकाम से बहुत मशहूर है। यहाँ की खूबसूरती बहुत मशहूर है। अगरचे ये प्लांट डाल रहे हैं बोले तो यहाँ के कई जंगलात को तबाह व बर्बाद करना रहा था, और यहाँ के जो जंगली जानवर थे उनको नुकसान हो रहा था, और ये जो वेस्टर्न घाट्स का जो खूबसूरत नज़ारे वाला इलाक़ा था उसको भी नुकसान हो रहा था। इससे निकलने वाली गैसें वगैरह माहौल को नुकसान करने वाली थी, माहौल का तवाज़ुन बिगाड़ने वाली थी। इसलिए ये मरकज़ को बनाने के लिए बहुत रुकावटें आई, मगर फिर भी माहौल का तहफ़्फ़ुज़ का ख़याल रखते हुए ये स्टेशन बनाया गया कर्नाटक में। आइए बच्चों चंद सवालात करती हूँ। अभी अब तक आप जो भी पढ़ा है उसके मुताल्लिक़ आपको सवालात करती हूँ, आप याददाश्त से जवाबात दीजिए। हिंदुस्तान में पेट्रोलियम की तक़सीम बयान करो। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों, अच्छी तरह से जवाब दिया। हिंदुस्तान में ज़्यादातर पेट्रोलियम के ज़खायर महाराष्ट्र के मुंबई हाई में, गुजरात में, आसाम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान मुंबई हाई का इलाक़ा मुंबई के करीब बहरे अरब में पाया जाता है। यहाँ पर पेट्रोलियम के ज़खायर बहुत हैं, इसलिए ये हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आता है। पेट्रोलियम के ज़खायर में अव्वल नंबर पर मुंबई हाई आता है। मुंबई हाई हिंदुस्तान में सबसे वसी और सबसे ज़्यादा खाम तेल निकालने वाला इलाक़ा है। रिवायती तवानाई के वसाइल की अहमियत बयान करो। रिवायती तवानाई के वसाइल याद कीजिए बच्चों, मैंने क्या कहा था? ऐसे वसाइल जो इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाते हैं, इनकी अहमियत क्या है बयान करो। जवाब, ये ख़त्म होने वाले वसाइल हैं। इसके इस्तेमाल से आलमी हिद्दत में इजाफ़ा होता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से माहौल आलूदा हो जाता है, माहौल का तवाज़न बिगड़ जाता है। आगे आने वाली नस्लों के लिए ये महफूज रखना है। अगर हम इस्तेमाल करके इन वसाइल को ख़त्म कर दें तो आगे आने वाली नस्लों के लिए ये वसीला ख़त्म हो जाएगा, उनके इस्तेमाल के लिए नहीं बचेगा। इसके इस्तेमाल से सब्ज़ घर के कुलिये में इजाफ़ा होता जा रहा है। देखिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। दोबारा बोलती हूँ, अच्छी तरह से नोट कीजिए और मश्क कीजिए। ये ख़त्म होने वाला वसीला है। इसके इस्तेमाल से आलमी हिद्दत में इजाफ़ा होता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से माहौल आलूदा हो जाता है। इसके इस्तेमाल से सब्ज़ घर के कुलिये में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। कोयले के अहम इस्तेमालात लिखो।
कोयले को कीमियाई सनतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। धमाकों के मादे तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मसनवी रेशे तैयार करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। मसनवी रबर बनाने के लिए, प्लास्टिक की तैयारी में इसे इस्तेमाल किया जाता है। कीमियाई खाद की तैयारी वगैरह में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में न्यूक्लियाई तवानाई स्टेशन कौन से हैं? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। हिंदुस्तान में 7 बड़े तवानाई के मरकज़ हैं। महाराष्ट्र के करीब मुंबई के करीब तारापुर, दूसरा राजस्थान में कोटा के करीब राणा प्रताप सागर, तीसरा तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कल्पकम, चौथा उत्तर प्रदेश में नरोवरा, पांचवा गुजरात में काकरपारा, तमिलनाडु में कुंदनकुलम और कर्नाटक में कारवार के करीब कायगा। ये अहम तवानाई के मरकज़ हैं। इसे अच्छी तरह से पढ़िए और याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं दोबारा फिर से ये जवाब दोहराती हूँ बच्चों, आप नोट कर लीजिए। हिंदुस्तान में 7 बड़े तवानाई के मरकज़ मौजूद हैं। पहला है महाराष्ट्र के करीब मुंबई के करीब तारापुर, राजस्थान में कोटा के करीब राणा प्रताप सागर, तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कल्पकम, उत्तर प्रदेश में नरोवरा, गुजरात में काकरपाड़ा और तमिलनाडु में कुंदनकुलम और हमारी रियासत जहाँ पर कर्नाटक में कारवार के करीब कायगा। ये बहुत अहम तवानाई न्यूक्लियाई तवानाई का मरकज़ है। अच्छा बच्चों, अब आपको घर पर काम दूंगी। इन सवालात को हल कीजिए, अपने मौलिमा से जांच करवाइए। रिवायती तवानाई के वसाइल की अहमियत बयान करो, यानी वो वसाइल जो ख़त्म होने वाले हैं इस्तेमाल से, उनकी अहमियत बयान करो। दूसरा है कोयले के अहम इस्तेमालात। कोयला कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसके मुताल्लिक़ लिखिए। कहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर करते हैं? खामाल के तौर पर सनतों में, फिर इसे रेल के इसमें इस्तेमाल करते हैं और होटल वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोयले की गैस बनाने के लिए भी कोयला इस्तेमाल करते हैं। याद से इसका जवाब लिखिए। चलिए मंसूबा बनाइए। रिवायती तवानाई के वसाइल की तस्वीर जमा करो। कहाँ कहाँ पर ये वसाइल हैं और इसके न्यूक्लियाई मरकज़ के स्टेशन जहाँ पर हैं हिंदुस्तान में, उसके भी तस्वीर आप जमा करो। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखो। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक हिफाजत से रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, हिफाजत से रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.